शौहर हमारे लिए कम मेहनत नहीं करता है, पूरा जिंदगी गुजार देता है। एक मर्द अपनी माँ बाप को खिलाने के लिए इतना मेहनत कभी नहीं करता है जितना अपनी बीवी बच्चों को खिलाने के लिए मेहनत ही करता है। बेइज्जती होता है लोगों के हाथों, लोगों के पास नौकरी करता है, गुलामी करता है, भीख मांगता है, जो भी करता है अपनी बीवी बच्चों को खिलाने के लिए ही करता है। अपने माँ बाप के लिए भी कोई मर्द इतना नहीं करता है जितना अपनी बीवी। قد قال الله عز وجل كما ورد في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم بات کرنے والے ہیں نیکار عورتوں کے بارے میں، دیندار عورتوں کے بارے میں۔ نیکار عورت کسے کہتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم میں نیکار عورتوں کی خوبیاں خاصیت ہے کہ نہیں؟ تو پھر چلیں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن الکریم پہ نیکار عورتوں کی کیا خاصیت بتائی ہے، کیا خوبیاں بتائی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی ہوں سورۃ النساء آیت نمبر 34، جس آیات پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فالصالحات، یعنی نیکار عورت وہ ہے، دیندار عورت وہ ہے، قانتات، جو عورت فرما برداری ہوتا ہے، جو عورت فرما برداری کرتی ہے۔ کس کی فرما برداری؟ لاور کی، بوائے فرینڈ کی، اپنے شوہر کی۔ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اپنے شوہر کو مایوس نہیں کرتی، وہی ہے نیکار عورتوں کی ایک خاصیت۔ اور دوسرا حافظات للغیب، اور جو عورت شوہر کی غیر موجودگی پہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی شرمگاہ کی، اپنی جسم کی حفاظت کرتی ہے غیر مردوں سے، یعنی جب شوہر گھر پہ موجود نہیں بھی ہوتی ہے تب بھی بیوی اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنی شرمگاہ کو غیر مردوں سے محفوظ رکھتی ہے، یعنی اپنی سنگار کو غیر مردوں کے سامنے نہیں کھولتی ہے، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو زنا سے بچاتی ہے۔ وہی ہے نیکار عورتوں کی خوبیاں، خاصیت۔ ایک، شوہر کی اطاعت کرنے والی، دو، شوہر کی غیر موجودگی پہ بھی اپنے جسم کی حفاظت کرنے والی، زنا سے بچنے والی، دوسری مردوں کے سامنے اپنی سنگار کو نہیں کھولنے والی، وہی ہے نیکار عورتوں کی خوبیاں۔ تو پھر آپ سوچیں کہ آپ میں وہ خوبیاں ہے کہ نہیں، آپ میں وہ خاصیت ہے کہ نہیں، جس سے آپ بھی نیکار عورتوں میں شمار ہو سکیں۔ اگر ہے تو الحمدللہ، اگر آپ میں وہ خوبیاں نہیں ہیں تو لائیں وہ خوبیاں آپ میں، کیونکہ شوہر کی اطاعت کرنا جو ہے نا وہ ہم پر فرض ہے، وہ اللہ کی حکم ہے ہم پر، ہمیں شوہر کی اطاعت کرنا لازم ہے، ہم پر فرض ہے۔ اختیار نہیں ہے ہمیں کہ ہم چاہیں تو شوہر کی اطاعت کریں، چاہے تو نہ کریں، نہیں ہے اس اختیار ہم میں، چاہے آپ کے شوہر جس لیول کا بھی انسان کیوں نہ ہو، آپ پر فرض ہے کہ آپ نے آپ کے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اس کی سننی ہے، اس کی ماننی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، یہی اللہ کا حکم ہے ہم پر۔ ہاں، شوہر کی ماننے کا بھی کچھ لمٹ ہے، ہم اس بارے میں لاسٹ پہ بات کریں گے۔
शोहर की इताअत करना हम पर फ़र्ज़ है, इसीलिए शोहर की इताअत करना ही है हमें। और आते हैं दूसरा नंबर पे, शोहर की इताअत करना हम पर फ़र्ज़ है, सिर्फ उस तक ख़त्म नहीं होती। शोहर की इताअत करने पे हमारे दो फ़ायदे भी हैं। एक है शोहर की इताअत करने की वजह से हमारा ज़िंदगी खुशियों से भर जाता है। दूसरा है हमें शोहर की इताअत करने के बदले अजर भी मिलता है। सुभान अल्लाह। जैसे जैसे आप शोहर की इताअत करने लगेंगी, शोहर की बातें मानने लगेंगी, शोहर को खिदमत करने लगेंगी, तो आप वैसे वैसे देखते जाएंगे आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरती जा रहा है। आपके शोहर आपकी तरफ मायल हो रहा है, आपको भी ज़्यादा प्यार करने लग रहा है और आपको भी इज्जत देने लग रहा है। ये आप एक मरतबा टेस्ट करके देखना घर पे कि आप ज़िंदगी भर जिस तरह से शोहर के साथ चल के आ रहे हैं, उससे भी थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाकर आप आपके शोहर का सुनने लगो और शोहर की इताअत करें, शोहर की खिदमत करें, तो फिर आप देखोगे आपके शोहर भी आपको ज़्यादा प्यार देने लगेगा और आपको इज्जत देने लगेगा। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगा। ये फ़ायदा हुई ना हमारे लिए। और दूसरा, शोहर की इताअत करने के बदले पे अल्लाह ने हमारे लिए बहुत सारे अजर रखी हुई हैं। सो हुई ना, दो फायदे हुई है हमारा इताअत करने पे। और तीसरा, एक मर्द के लिए दुनिया की जन्नत जो होता है ना, एक औरत होती है, उसकी बीवी होती है, जिसका नेककार बीवी, इताअत करने वाली, फरमाबरदारी बीवी मिलता है, उसको ये दुनिया जन्नत की मानिंद लगता है। उस मर्द को ये दुनिया जन्नत की मानिंद लगता है। देखिए, इस बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है, अद्दुन्या मता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, ये दुनिया जो है एक आसाइशों का नाम है, एक साजो सामान है, एक चीज़ों का नाम है। और वख़ैरु मताइद्दुन्या अल-मरअतुस सालिहा, और दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट आसाइश जो है, चीज़ जो है, सामान जो है, वो है एक नेककार बीवी, वो है एक नेककार औरत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ये दुनिया जो है ना, एक सामान का, साजो सामान का, आसाइशों का नाम है। और इस दुनिया की सबसे बेस्ट सामान जो है, सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, वो एक नेककार औरत है। यानी जो मैंने अभी कही हूँ ऊपर से, जिस मर्द को नेककार बीवी मिल जाता है, दीनदार बीवी मिल जाता है, इताअत करने वाली बीवी मिल जाता है ना, उस मर्द को ये दुनिया जन्नत की मानिंद हो जाती है। उस मर्द को और इस दुनिया की कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, जिसको नेककार बीवी मिल गई होती है उसे। और रही बात हमारी, हम में तो बहुत सारे औरतें, बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं कि शौहर की इताअत करना हम गुलामी समझते हैं। शौहर की इताअत करने से हम छोटा हो जाते हैं, यही लगता है, हमारा इज्जत कम हो जाता है, यही लगती है हमें। हम में बहुत सारे औरतों को, बहुत सारी लड़कियों को यही गलत फहमियाँ है कि शौहर की इताअत करने से हम छोटा हो जाएंगे, हमारा इज्जत कम हो जाएगा, हमारा मर्तबा कम हो जाएगा, कि गुलामी सा महसूस होता है, यानी शौहर की इताअत करना। मैं कहूँ तो बहनें, ये कोई गुलामी नहीं है, ये बड़ी इबादत है। इसके बदले हमें अजर मिलता है और हमारा ज़िंदगी भी खुशी से भर जाता है, हमारा शौहर हमारे तरफ मायल हो जाता है। और ये भी बात है कि अल्लाह ने दुनिया पे हर एक बीवी के लिए उसके शौहर को इतना ऊपर मर्तबा वाला बनाया है कि दुनिया पे शौहर से ज़्यादा ऊपर मर्तबा वाला कोई भी दूसरा लोग नहीं होता है एक औरत के लिए। बात आई समझ पे? एक औरत के लिए सिवाय अल्लाह के दुनिया पे सबसे ज़्यादा मर्तबा वाला, ऊंचा दर्जा वाला लोग कौन है? उसके शौहर है। तो फिर उसके इताअत करने पे हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। और इसके बारे में और एक हदीस सुनाती हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस तिरमिज़ी पे आया है, हदीस नंबर 1159, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यसजुद लि अहद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैंने दुनिया पे किसी को किसी की सजदा करने की हुक्म देती, इजाज़त देती सिवाय अल्लाह के, लोगों को एक दूसरे की सजदा करने का इजाज़त होता, तो लामरतुल मरअत अन तस्जुद लि ज़ौजिहा, तो मैंने हर औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर की सजदा करें। आई बात समझ पे? शौहर की मर्तबा कितना ऊंचा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही समझाया है कि अल्लाह के सिवा
अल्लाह के सिवा अगर किसी के सामने झुकना जायज़ होता तो फिर हर औरतों पर हुक्म होता, हर औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर के सामने सर झुकाए, अपने शौहर को सजदा करे। लेकिन ये हम पर हराम है, इसीलिए हम औरतों को शौहर की सजदा करने की हुक्म नहीं दिया गया है। अगर हलाल होता, ये जायज़ होता तो हमें शौहर की सजदा करने की हुक्म दिया जाता। यानी शौहर हमारे लिए इतना ऊंचा दर्जा वाली इंसान है तो उसके इताअत करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। और उसकी थोड़ा कम ज़्यादा गर्मी शर्मी हुकूमती हम पर ही तो चलते हैं। उस बेचारों ने यानी हर शौहर ने हम बीवी बच्चों को चलाने खिलाने पिलाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है। पूरा दिन रात 24 घंटा पे 12 घंटा 13 घंटा 10 घंटा उन लोग बाहर जाकर लोगों की गुलामी करता है, लोगों की बातें सुनता है, क्या कुछ नहीं करता। अगर कुछ काम ना मिले तो भीख मांगता है, फिर भी घर पे लाकर बीवी बच्चों को खिलाता है। तो फिर चलने देते हैं ना हम पर भी हमारे शौहर की थोड़े कम ज्यादा नखरे घर में हुकूमें। उन लोग हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता है तो हम उन लोगों की इतनी सी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमें बर्दाश्त करनी चाहिए शौहर की। शौहर हमारे लिए कम मेहनत नहीं करता है, पूरा जिंदगी गुजार देता है। एक मर्द अपनी माँ बाप को खिलाने के लिए इतना मेहनत कभी नहीं करता है जितना अपनी बीवी बच्चों को खिलाने के लिए मेहनत ही करता है। बेइज्जती होता है लोगों के हाथों, लोगों के पास नौकरी करता है, गुलामी करता है, भीख मांगता है, जो भी करता है अपनी बीवी बच्चों को खिलाने के लिए ही करता है। अपने माँ बाप के लिए भी कोई मर्द इतना नहीं करता है जितना अपनी बीवी बच्चों के लिए करता है। तो फिर उस शौहर की, जिस शौहर ने इतना मेहनत करके पूरा जिंदगी भर आपकी वसीला बनकर रह सकता है, तो उसकी थोड़ी कम ज्यादा गरम शर्म आप पर चलने देते हैं ना, आप पर उसके हुक्म चलने देते हैं ना। उसकी हुक्म तो हम पर ही चलता है सिर्फ, सिवाय हमारे उनकी हुक्म तो कहीं और नहीं चलता है ना। तो बेचारों की हुक्म हम पर चलने देते हैं, उससे आपका जिंदगी की शांति बढ़ जाएगा, खुशियाँ बढ़ जाएगा। अल्लाह हम सबको समझने की और शौहर की इताअत करने की तौफीक इनायत करे, आमीन। बट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन इस बारे में और एक बात याद रहे कि शौहर की बात मानने की भी कुछ लिमिटेड है। जैसे बहुत सी बेवकूफ़ औरतें ऐसे भी होता है कि शौहर की बात मानना तो हम पर फर्ज है, उसकी हर बात मानना, ऐसे सोचकर शौहर की जो बात माननी चाहिए वो भी मान लेती है, जो बात माननी नहीं चाहिए वो भी मान लेती है, जिस वजह से वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कर जाती है जाने अनजाने पे। सो ऐसे ना हो कि शौहर की इताअत करने के चक्कर में हम अल्लाह की नाफरमानी ना कर बैठे। समझ रही हो ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसा कि अगर आपके हस्बैंड आपको बोलता है कि आज फर्ज नमाज छोड़ दें, नाउज़ुबिल्लाह ऐसे कोई बंदा होता भी नहीं, ऐसे कोई मोमिन हो ही नहीं सकता है। बस फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर बता रही हूँ, अगर आपके शौहर आपको बोलता है कि आज ज़ोहर की नमाज ना पढ़ें, आप मेरे साथ बैठी रहें। अगर आपके शौहर आपको इस तरह बोलता है, आपकी फ़र्ज नमाज पढ़ने से आपको रोकता है, तब फिर आप क्या करोगे? तब शौहर की बात मानेंगी या फिर नहीं मानेंगी? डेफिनेटली शौहर की बात नहीं मानेंगी ना इसमें, क्योंकि अल्लाह का फ़र्ज पहले है, उसके बाद शौहर की इताअत है। हम पर रमज़ान का रोज़ा और 5 वक्त का नमाज हम पर फ़र्ज है। जो फ़र्ज नमाज है और जो फ़र्ज रोज़ा है, उन सब पे अगर आपके शौहर आपको रोकता है तो वहाँ पे आपने आपके शौहर की नहीं सुननी है। और एक बात बोलती हूँ, अगर आपके शौहर आपको बोलता है कि आप पर्दा नहीं करनी है, आपने बेपर्दा मेरे दोस्तों के सामने जानी है, आपने बेपर्दा मेरे साथ घूमने के लिए बाहर जानी है आवामों के बीच में, अगर आपके शौहर आपको इस तरह बोलता है तो फिर आप क्या करेंगे? यानी आपको पर्दा करने से रोकता है तो फिर आप क्या करेंगे? पर्दा नहीं करेंगे या फिर शौहर का बात नहीं मानेंगे या फिर मानेंगे? डेफिनेटली वहाँ पे भी आपने आपके शौहर का नहीं मानेंगी, बल्कि आपने आपके शौहर को प्यार से समझाएंगी। वो होता है ना, हर बीवियाँ प्यार से शौहर को समझा कर बहुत कुछ करवा भी सकते हैं, बहुत कुछ मनवा भी सकते हैं। उसी तरह आपने भी आपके शौहर को प्यार से समझाएंगे। अगर से आपके शौहर आपको पर्दा करने से रोकता है तो फिर आप वहाँ प्यार से समझा कर बताएंगे कि पर्दा करना तो अल्लाह का हुक्म है, मुझ पर फ़र्ज़ है, ये मुझ पर कैसे मैं इसे टाल सकती हूँ। अगर ऐसे समझाने की बात आपके शौहर मान जाता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं मानता है तब भी आपने वहाँ पे आपके शौहर का नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगी, आपने बराबर ही पर्दा करेंगे, क्योंकि ये आप पर अल्लाह का हुक्म है, इसे आपने टाल नहीं सकती। उसकी बात आप नहीं मानेंगे। वहाँ पे जहाँ जहाँ वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करने की आपको उकसाता है, जहाँ जहाँ आपके शौहर आपको अल्लाह की हुक्म के खिलाफ करने का हुक्म करता है, ऑर्डर देता है, तो फिर आप वहाँ आपके शौहर की इताअत
इताअत नहीं करेंगे, आपके शौहर की बात को अवॉइड कर जाएंगे और बाकी जगह आप शौहर की ही सुनेंगे। जैसे आप नफल नमाज पढ़ रही हैं, जैसे आप नफलें रोज़ा रखने वाली हैं या फिर रख रही हैं, आपकी शौहर आपको वहाँ पे रुकता है तो फिर ज़रूर आपके लिए लाजिम है कि नफल नमाज छोड़ दें, नफल रोज़ा छोड़ दें। जहाँ आपके शौहर की नागवारी हो, जहाँ आपके शौहर की इजाज़त ना हो, वहाँ पे आप नफल नमाज, नफल रोज़ा, नफल इबादतें आप छोड़ दे सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ के लिए अगर आपके शौहर आपको रोकता है तो फिर आप आपकी शौहर की बातों की गुल्ली मारकर आप अपना फ़र्ज़ पहले अदा कर लेनी है। देखें, इस बारे में एक हदीस सुनाकर आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस मिशकात 3696 हदीस नंबर, ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी भी मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है जिसकी इताअत में अल्लाह नाराज़ हो। यानी अल्लाह की हुक्म के खिलाफ होकर किसी की इताअत करना जायज़ नहीं, चाहे वो शौहर क्यों ना। पहले अल्लाह की फ़र्ज़ है, उसके बाद शौहर की हुक्म की इताअत करनी है। हाँ, शौहर की इताअत करना भी अल्लाह का हुक्म है, लेकिन शौहर की इताअत करने के लिए आपने अल्लाह का दिया हुआ दूसरा तीसरा फ़र्ज़ें छोड़ नहीं दे सकते आपने। इसीलिए इस हदीस से साफ है कि कोई भी महलूक यानी कोई भी इंसानों की इताअत करने के चक्कर में आप अल्लाह की हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, आप अल्लाह का हुक्म छूट जाने नहीं दे सकती। इससे आप फरमाबरदार बीवी नहीं बनेंगी, बल्कि आप इससे नाफरमान लोगों में, बदकार औरतों में शुमार हो जाएंगी। इसीलिए ख्याल रहें कि शौहर की इताअत करने के चक्कर में आप अल्लाह के नाफरमान बंदी ना बन जाएं। इतना याद रहें कि अल्लाह का किया हुआ हम पर फ़र्ज़ जो है वो पहले है, उसके बाद शौहर की इताअत करने वाला जो फ़र्ज़ है वही है। अगर शौहर हमें हमारा फ़र्ज़ काम करने से रोकता है तो फिर हम वहाँ शौहर की बातों को अवॉइड कर जानी है, शौहर की बात वहाँ नहीं माननी है। उसके बाद हमें अगर शौहर ने फ़र्ज़ के अलावा जैसे नफल इबादत करने से रोकते हैं तो फिर हमें वहाँ नफल इबादत छोड़ देकर शौहर की बात को पहले सुनना लाजिम है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होंगी। अल्लाह हम सबको समझ कर चलने की, फरमाबरदार बीवी बनने की तौफीक इनायत करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।